नमस्कार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं हूँ, मैं अशोक व्यास हूँ। पर मोदी जी का चेहरा लगाना मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि उनके चेहरे के पीछे का जो चिंतन है, जो प्रेरणाएँ हैं, जो पूरे विश्व को आंदोलित कर रही हैं, एक सकारात्मक भाव से भर रही हैं। विशेष करके भारतीय सांस्कृतिक गरिमा को जागृत रखने वाला एक ऐसा विशिष्ट अनूठा पुरुष इस युग में हमारे साथ है, जिसको चाहने वालों की संख्या अंगुली अंगुलियों पर तो निश्चित रूप से नहीं गिनी जा सकती, पर गिनने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो अनंत है उसके साथ में जुड़कर मनुष्य होने के गौरव को भारत माता के आशीर्वाद से जीने और औरों को उस तरफ प्रेरित करने वाले नरेंद्र मोदी जी के जो भाव है, उनको लेकर मैं अपनी कविताओं की तरफ नहीं जाते हुए सीधा-सीधा पहले तो आनंद से आज के इस विशेष दिन का, जो कि 22 सितंबर का दिन है, 5 दिन पहले हमने उनका जन्मदिन मनाया या नहीं भी मनाया, पर हमने याद किया कि 17 सितंबर को एक यशस्वी, मनस्वी, चिंतक, प्रेरक, कर्मशील, योगी और सृजनशील सकारात्मक भाव को लेकर जीने वाला मनुष्य भारत की धरती पर आया था, आया है। और उनके स्वागत के लिए जो मोदी इन यूएस की जो तैयारियां हैं, उनकी कुछ झलक दिखाने के साथ साथ वाई आई लव मोदी ये प्रश्न अ, हमने जब डॉक्टर सुधीर पारिक जी से किया तो उन्होंने क्या कहा, और एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जो गुजरात से आए थे, जो भारत में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके साथ में बहुत समीप से काम करने का उनका अनुभव था। श्रीमद् भगवत गीता के वो बड़े ज्ञाता भी हैं, और उन्होंने क्या कहा नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वो भी आप जानेंगे। और साथ ही हमारे मित्र कृपा जी, जो कल वहां पर अपना कैमरा आईटीवी गोल्ड के लिए रखने के लिए गए, तो उन्होंने कुछ झलकियां तैयारियों की जो ली हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। I love Modi because he is a great man and he represents the Sanatan Hindu philosophy in life. I love Modi because he believes in Karma Yoga. He works relentlessly, tirelessly. He has a deep sense of bhakti and उनकी भक्ति का मैंने प्रभाव देखा है, इसलिए I love Modi. I love Modi because he is aware that he represents the Gyan, he represents the ultimate supreme power of the world, the Lord Shiva and Mahakal, and whatever name we can give, but he is that way a spiritual Hindu, and that's why I love him. Music. Love Modi is the series where we are celebrating the inspiring personality of world statesman now. When I ask you, why do you love Modi? What comes to your mind? Well, I mean, on personal level, he is a very close friend of mine. For last 23 years, I know him very well, right from when he was General Secretary of BJP party. He used to come with the Atalji, Prime Minister Atalji here every year during the United Nations meeting in September. He is a kind of person who has a vision. I mean, look at his vision as a chief minister. He started the Vibrant Gujarat in 2003, and because of that Vibrant Gujarat,
idea or initiative, lot of foreign investment came to the Gujarat, and Gujarat become very prosperous and very rich state as compared to other state of the India. He also has a very clear understanding of education, the economy, as well as he is really whatever he thinks or whatever his vision is, he knows how to implement that vision, and that is a great quality of the person. And now he's after being a prime minister, very successful last 10 years, and not only successful prime minister, but he made India and brought the India into all the digital era, and did all the infrastructures, which is state of the art infrastructure. Not only that, but he made India a world leader. I mean, look at his performance and his exhibition of the Indian culture, art, and Indian importance in the G20 tells us that he is the one who knows how to perform, how to exhibit, and how to make other world leader get interested in India and India's economy. And I agree with him that he wants to make India as a third largest economy after China in next 10 to 15 years, and I wish him best. And me personally, for last 30-40 years, I'm promoting US-India relation, and I'm sure promotion of the US-India relation from the North America will be a great help to our Prime Minister to achieve his goal. So I wish him happy birthday and many more, and I wish him success. And I'm sure he is now world leader, but one day he will be. I will not be surprised if he gets recognition from the Nobel Committee or higher organization because of his great work. So Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. तो हेरम्बा स्टूडियो भारतीय सांस्कृतिक आभा से जुड़े हुए भारतीय शास्त्र और मनीषा को केंद्रित कुछ कार्यक्रम समय समय पर आप तक पहुंचाता है, जिसमें हम इन दिनों श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद को क्रमिक रूप से एक एक अध्याय आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ITV गोल्ड के साथ में मेरा जो संबंध रहा है 25 वर्षों का, उसके साथ साथ ये समानांतर एक जागृति जो आध्यात्मिक भाव को लेकर हुई है, तो दोनों की तरफ से हम मोदी जी का स्वागत करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं कुछ झलकियां मोदी जी से प्रेम करने वाले भाव की और कुछ झलकियां मोदी इन US कार्यक्रम की जोरदार तैयारियों की। और हाँ, इस क्रम में आगे भी कुछ प्रस्तुतियां आपको हेरम्बा स्टूडियो पर मिलने वाली हैं, पर फिलहाल तैयारी है उस कार्यक्रम में पहुंचने की जहां पूरा नशा कॉलेजियम जो है वो झूम जाने वाला है उसकी उपस्थिति से, जो हमें भर देता है सकारात्मक चिंतन से, भारत के प्रति गौरव से, और कई रूपों में प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ को उजागर करें। तो ये प्रेरणा आप तक पहुंचाते हुए फिर एक बार ये चेहरा जो मैंने काफी सालों से संभाल कर रखा हुआ है अपने पास, लेकिन अगर ये सिर्फ बाहर से रहे तो सब कुछ खो जाता है, तो इसको अंदर लेने की आवश्यकता है। चाहे कहने वाले आपको मोदी वक्त कहने का आनंद लें, तो हमें उससे संकोच करना नहीं है, क्योंकि हमें खुलकर बोलना है, महसूस करना है,
भारत माता की जय जयकार को। चाहे किसी भी देश में आप रह रहे हो, भारत वो है जो वसुदैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार है, उस भाव को लेकर आता है। इसलिए अपने परिवारजनों के साथ जुड़ने का मैंने भी मोदी जी के आगमन के अवसर पर ये जो आनंद लिया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।